Good afternoon and welcome everyone to this daily class on current affairs on www.jatinvarma.org. So in this class, first of all, we are going to see the newspaper today, the run through of the newspaper, the important news articles. I'll be explaining some of them in detail, like the first one. NRC, what is NRC? 19 lakh NRC excluded, stuck in limbo. And then Toy Hub, Global Toy Hub, we'll have some detailed analysis on this today. Then we will see the genetically modified crops as a topic, and then some aspects have been taken from some news articles have been taken from Indian Express as well. So just give me 1 minute. Now I can see your names and comments. So here we go. तो न्यूज़पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देखते हैं. इंडिया कैन बिकम अ टॉय हब, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड येस्टरडे. एंड देन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नॉट अ पेनाल्टी, सेज डीओपीटी. डीओपीटी का ये कहना है डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंपल्सरी रिटायरमेंट. प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अगर किसी को कहा जाता है लेने को, तो वो एक पनिशमेंट ना मानी जाए. तो इन ऑर्डर टू हैव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबल एंड efficient administration at all levels, and to achieve efficiency, economy and speed in the disposal of government functions. 14 lakh affected. This is not relevant for our purpose since I did not do DNA today, so this will be relevant for you guys. आज क्योंकि DNA नहीं कर पाया मैं. Denial of GST dues will crush federalism, says West Bengal finance minister, who was an essential part of the transition from VAT to GST. Mr. Amit Mitra was a crucial part. He was the leading chairperson of the committee, and all those things were associated with him. Then haldi, being a GI tagged commodity, loses its color and flavor amid pandemic. ये सारे छोटे छोटे से न्यूज़ आर्टिकल्स. एंड इसी के साथ हैव अ गुड कंपनी. ये मंडे को न्यूज़पेपर में इंश्योरेंस, इसमें बिजनेस पेज में कुछ ज़्यादा नहीं आता. नाउ स्टार्ट करते हैं फटाफट से. हिजबुल्लाह ओपन टू न्यू लेबनान पैक्ट प्रपोजल. तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो फाइट चल रही थी उसको देखेंगे. स्टार्ट करते हैं गाइज. इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल टॉय हब. ऑल दीज थिंग्स आर देयर. पुअर एयर क्वालिटी इन स्मार्ट सिटीज ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अथॉरिटीज. So editorials में a development that will hardly put India at ease. World Bank's decision to halt its annual ease of doing business reporting. Just one minute. I'm so sorry. Unusual decision to put a halt on its annual ease of doing report on data authenticity issues has got major implications for India. तो ये थोड़ा सा इसको brief में देख लेंगे एक बार. And this is the gaps in India's healthcare exposed by the pandemic must be closed quickly. All this is again beating around the same bush. When crises pay politically, crises in India are created and utilized to further entrench the image of the leader as the only savior. So crisis pay not in terms of population good or welfare of the people, but politically. कोई ना कोई crisis जब उमड़ने दिया जाता है, बढ़ने दिया जाता है, to entrench the image of the leader as the savior, as the only savior. देखो मैं आ गया, kind of rescue करने के लिए कोई स्पाइडरमैन या फिर कोई शक्तिमान अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए कभी कभी क्राइसिस को पूरा शेप लेने देता है. और उसके बाद अब माइंड मैप्स में एक बार फटाफट से देख लेना. मानसार लेक rejuvenation project. Union Ministry initiated this Mansar Lake project by holding a high level meeting with the meeting to discuss the detailed project report. It is a comprehensive plan for development and upgradation of Mansar Lake and surrounding areas. Project aims to holistically develop Sacred Lake of Mansar as the second biggest tourist destination in Jammu region, and also to preserve lake, its ecology and heritage. It is situated 62 kilometers from Jammu. So just details oriented for your prelims exam. This is there. Then lake fringed by the forest covered hills. Surnisar, Mansar lakes were designated as Ramsar Convention lakes in November 2005.
सुरनिसार, मानसार लेक्स, ये दोनों लेक्स को डेजिग्नेट किया गया था, ये है. Then GIS enabled land bank system, a prototype of national GIS enabled land bank system. Land bank system was launched by the Commerce and Industry Ministry for 6 states, based on which land can be identified for setting up industries. Developed by integration of industrial information system with state GIS, ये GIS based land bank system. This is a kind of preparation that is going into contract farming and for other things also. GIS enabled land bank होगा तो हम land को identify कर पाएंगे कहाँ पे pockets of land available हैं. On system, more than 3,300 industrial parks across 31 states, union territories covering about 4,75,000 hectares of land have been mapped out on the system. तो information available on system will include drainage, forest, raw material, heat maps जैसे कि कहाँ पे इन चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल पाया जा रहा है. मल्टी लेयर ऑफ कनेक्टिविटी. IIS has adopted a committed approach towards industrial upgrading, resource optimization and sustainability. Initiative supported by National E-Governance Division, National Center for Geoinformatics, Invest India, and then Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geoinformatics. तो ये सारे institutes and then Ministry of Electronics and Information and Treaty. तो this could as well be asked in this prelims exam. National Center for Geoinformatics, right? ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. Ease of investment में भी ये help करेगा. And it will act as a one-stop repository to have plot information, satellite value of the terrain, and information on 3,300 industrial parks. Like the Prime Minister was referring to yesterday, that there could be hubs for toys, etc. ये सारा कुछ लैंड बैंक में डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी. तो ये सारी चीजें हैं. Then Gaofen 905 सैटेलाइट. चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड Gaofen. कहाँ की सैटेलाइट है ये आपको पता होना चाहिए. इट इज अ न्यू ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैरिड बाय लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट. इट वॉज लॉन्च फ्रॉम दी जियोकान सैटेलाइट सेंटर. ये काम का नहीं है बट ये चीज़ नाम पता होना ज़रूरी है. रिमोट लर्निंग रिसर्च रीचेबिलिटी रिपोर्ट. यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड. रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी. व्हाट इज द रीच आउटरीच ऑफ रिमोट लर्निंग? तो report outlines the limitations to remote learning and exposes deep inequalities in the access. At least 1/3 of the world's school children, which works to around 463 million, could not access remote learning since schools have been shut down because of COVID-19. In India, at least 1.5 million schools are closed because of the pandemic, which is primarily affecting 286 million students from pre-primary to secondary level, of which 49% are girls. तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखने का. एंड आते हैं पॉलिटी पे. 19 लाख NRC excluded stuck in limbo because of COVID-19. एक साल बाद they are yet to receive the rejection slips that they have been rejected. Exactly a year after the publication of the complete NRC, the fate of 19,06,657 people excluded from the updated list in Assam continues to hang in the balance. The ongoing COVID-19 crisis and the repeated floods have been blamed for the delay in issuing rejection slips to each of the excluded persons. Rejection slips cannot be issued until COVID-19 is brought under control. तो ये एक उनके लिए बड़ा चैलेंज है. जब तक रिजेक्शन स्लिप नहीं मिलती तब तक वो इस काम को, इस एक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते. NRC authority had said work would resume from September 1 after asking the district heads to ensure laptops and internet facility for officials handling the process. The pandemic will soon cease to be an excuse for keeping the process in a limbo. Some stakeholders have suggested that the issue of illegal migrants could be kept alive for yet another election. तो जो हमने एडिटोरियल देखा, कुछ कुछ क्राइसिस को पनपने दिया जाता है. रामसर कनेक्शन पढ़ेंगे. रामसर कन्वेंशन क्या है? इन्हीं लेक्स पे जो इनलैंड वाटरवेज हैं, लेक्स हैं, उनके ऊपर रामसर कन्वेंशन है. उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, कवर किया जाएगा.
नाउ अब यहाँ पे ये देखो कि जो हमने एडिटोरियल देखा जिसका हेडलाइन ये था कि कुछ कुछ इश्यूज को जानबूझ के जिंदा रखा जाता है, दे आर केप्ट अलाइव, दे आर केप्ट बर्निंग फॉर yet another election and yet another dividend. The Congress, which had started the NRC process, slammed the BJP for delaying the process after the complete list left out many non-Muslims. Government has hushed up the NRC that was once their main issue. BJP's hidden agenda has been exposed after the exclusion of many Bengali Hindus who were flattered to deceive. List did not get their way and they want the issue to linger for political mileage. So center will not do anything before the assembly elections 2021. So it did nothing despite the several guidelines from Supreme Court showing it is not serious about the NRC or the future of Assam's indigenous people. NRC could have ensured a permanent solution to the issue of illegal immigrants. ASU, All Assam Students Union, has resented the delay in setting up 200 new foreigners tribunals. Foreigners tribunals को सेटअप करने की पावर पहले सिर्फ यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास होती थी. अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सेटअप करने के लिए पावर्स दे दी थी. स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन गिवन द पावर टू सेटअप foreigners tribunal in the state of Assam. The government had appointed 221 members judge-like status for these foreigners tribunals in August 2019 and their 1-year term is unlikely to be extended. तो 1 year क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया था तो जज लाइक स्टेटस दे दिया गया था 221 मेंबर्स को. अब उनकी टर्म को एक्सटेंड तो नहीं किया जाएगा. नो ऑर्गेनाइजेशन इन असम इज हैप्पी विद द एनआरसी लिस्ट and a petition is pending in the Supreme Court for re-verification of at least 10% of the names in the districts where demographic changes have been drastic. So what has been the purpose of this? ये NRC क्यों लाया गया? क्योंकि डेमोग्राफिकली बांग्लादेश के लोग जब असम में आके सेटल होने लगे, असम में जो इंडिजिनस पीपल हैं, देयर स्टेक्स or their interest or you can say their chances of getting remunerative occupation or employment were getting reduced. So that's why ये NRC एक्सरसाइज करवाई गई. मार्च 1971 में जो असम अकॉर्ड हुआ था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और बाकी के असम के जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स थे उनके साथ में ये अग्रीमेंट किया राजीव गांधी ने. 1971 में ये असम अग्रीमेंट किया गया, असम अकॉर्ड साइन किया गया. 1985 में उसमें ये लिखा गया कि 1985 राजीव गांधी, यस. 1971 की जो डेट है उसके बाद, मार्च 1971 के बाद जो भी लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए उसके बाद उनको बाद में आने वाले लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा. सो एज टू ब्रिंग अबाउट द डेमोग्राफिक बैलेंस. डेमोग्राफी जो असम की ओरिजिनली थी उसको रिस्टोर किया जा सके. अब सारा कुछ समझ में आ जाएगा अभी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स क्या हैं. तो अब दिक्कत क्या हो रही है कि इनको अगर निकालते हैं तो बांग्लादेश के साथ में हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो स्पॉइल हो जाएंगे. और इसमें से एक और प्रॉब्लम ये हो गई कि असम स्पेसिफिकली क्यों बॉयल पे है, क्योंकि फिर इसको नेगेट करने के लिए लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. ये कहा गया जो बंगाली हिंदूज हैं और जो बाकी की जो कम्युनिटीज हैं मुस्लिम्स को छोड़ के उनको यहाँ पे रहने के हक दिए जाएंगे. यानी कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज इलीगल immigrants into India because they migrated into India after 24th March 1971. Despite the fact that they are illegal migrants as per the cut-off date, 24th March 1971 was kept as the cut-off date. उसके बाद यदि कोई इंडिया में दाखिल हुआ है बांग्लादेश से तो उसको एक्सट्रेडाइट किया जाना चाहिए. अब ये सारी एक्सरसाइज कर दी, इलेक्शन जीत लिया, असम का इलेक्शन तब तक कंक्लूड हो गया. फिर अब ये लेके आए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें ये कहा गया कि जिन लोगों को बांग्लादेश या अफगानिस्तान या पाकिस्तान अगर हिंदूज को डिपोर्ट किया जाएगा, एक्सट्रेडाइट किया जाएगा, तो उनका वहाँ पे थ्रेट है कि दे माइट बी परसिक्यूटेड इन दी कंट्री. उनको वहाँ पे प्रताड़ित किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है. इसी थ्रेट के हिसाब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इन 5 कम्युनिटीज़ को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, सिख्स को, हिंदूज को इंडिया में रहने की
ये जो है मंजूरी दे दी गई। बावजूद इसके दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। असम के रेजिडेंट्स ने ये कहा कि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है। पहले तो हमें ये कहा कि हम इनको एक्सट्रेडाइट करेंगे बंगाली हिंदूज को, बट अब उन बंगाली हिंदूज को जो 40 लाख लोग आइडेंटिफाई करे गए उसमें से इन कम्युनिटीज को इंडिया में ही रहने के हक दे दिए गए, जिससे कि ये लोग तो खुश हैं। बांग्लादेश भी थोड़ी सी इस चीज को फेवरेबली देख रहा है कि चलो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, लेकिन असम के लोग जिनके लिए ये सब किया जा रहा था, दे आर बैक टू दी ग्राउंड जीरो, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। समझ में आया? तो ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसीलिए इज द सिटीजनशिप कॉनंड्रम। आफ्टर द फर्स्ट नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एक्सरसाइज was carried out in 1951, the wheels were set in motion to update the list in 2005. 2015, Assam began the task of verifying and updating the National Register of Citizens list. How many are or who are the citizens of India? Out of current 32.9 million applicants to the list, 4 million potentially stare at being rendered stateless. 40 लाख लोग जो टोटल बांग्लादेश में 320 करोड़ या 321 करोड़ की आबादी है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 3 करोड़ 21 लाख की जो आबादी है, 3 करोड़ 20 लाख की जो आबादी है, उसमें से 40 लाख लोग निकाल दिए जाएंगे। बट इस 40 लाख में से 10 से 12 लाख लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए बच जाएंगे। असम के इंडिजिनस लोग ये कह रहे हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट गलत है। ठीक है, ये तो आपने पहले एक पाखंड किया, एक प्लॉय प्ले किया कि 40 देखो हम एनआरसी कंडक्ट कर रहे हैं, और फिर बाद में काफ़ी सारे लोगों को आपने सिटीजनशिप दे ही दी। तो आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951 द फर्स्ट एनआरसी लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड। 2005 एक 3 लेयर्ड अग्रीमेंट, 3 पार्टी अग्रीमेंट किया गया था, चेयर्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इज हेल्ड अमंग द सेंटर, Assam government and the all Assam Students Union. Assam Public Works, a non-governmental organization, files a writ petition in the Supreme Court for the deletion of illegal migrants' names from the voters lists in Assam. Pilot project to update NRC launched in Kamrup and Barpeta districts, but halted soon after due to law and order problems. Assam government sets up cabinet subcommittee to simplify the procedure. Supreme Court directs the center to finalize the plan of action by July 2013. Supreme Court directs the center to resume the updation of NRC. State invites NRC application forms from May to August 2015. Verification exercise और फिर first draft लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ये सब चीज़ों को देख रहा था, राइट? तो witness to the decades of migration from Bangladesh, formerly East Bengal and then East Pakistan, Assam already has an NRC which was published in 1951. But क्योंकि बांग्लादेश में वॉर के दौरान 1971 के दौरान काफ़ी सारे लोग इंडिया में आए, 1971 के बाद भी काफ़ी सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए। अब सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि जब तो वॉर चल रहा था बांग्लादेश में, जब रॉयट्स हो रहे थे, ये सब हो रहा था, मुस्लिमों को मारा जा रहा था या कुछ, तब जो पैनिक की सिचुएशन में जो लोग यहाँ पे आए वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग बाद में आए बांग्लादेश में, जब वॉर खत्म हो चुका था 24 मार्च 1971 तक, उसके बाद आने वाले लोगों को निकाला जाए। Those who entered Assam before that date are recognized as citizens of India. That was a draft published on July 2018. In that list, 2.89 crore were included as Indian citizens, while 40 lakh were left out. The update, mandated and monitored by the Supreme Court, is fallout of the Assam Accord of 1985, which sets March 24, 1971 as the cutoff date for citizens. तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है। Is this clear to everyone? Yes. अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा जा रहा है कि एनीबडी हु केम टू इंडिया आफ्टर 1 Jan 2014
यानी कि जो 2014 से पहले आए हैं उनको निकाला जाएगा, जो बाद में आए हैं उन्हें नहीं, जो 2014 से पहले आए हैं उन्हें नहीं निकाला जाएगा, और जो बाद में आए हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, राइट। तो ये इसका बैकग्राउंड डिटेल्स थी। आफ्टर दैट दोज हु वर लेफ्ट आउट वर अलाउड टू फाइल क्लेम्स। कहाँ क्लेम फाइल करोगे? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स, राइट। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं इस पर्पस के लिए, ये जज करने के लिए कि कौन फॉरेनर है और कौन नहीं। अगर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डालने के बाद किसी का नाम ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल की वो फॉरेनर है, तो फिर उसको देश छोड़ के उसको एक्स्ट्राडाइट कराया ही जाएगा, राइट। क्लियर है ये? Just 1 minute, guys. So this is there. Now, does this mean that 19 lakh are illegal migrants? तो यानी कि 40 लाख आइडेंटिफाई करे, इतनी ज़्यादा पैनिक क्रिएट करके उसमें से 11 लाख से 12 लाख को लेजिटिमाइज कर दिया। Not necessarily. They still have the option of appealing. This is what Assam, all Assam Students Union and other insurgency groups or indigenous groups of Assam are not happy with. They can approach within a deadline a foreigners tribunal with a certified copy of rejection order from NRC. That is why the rejection order in news. It is in news because if they are not given the rejection order in time, they would stand to lose the chances of appealing. In addition to the 100 existing foreigners tribunals, 200 more will be functional soon. If the applicant loses their case before such a tribunal, he or she can appeal in the High Court and then the Supreme Court if necessary. Someone who is not only excluded from the final NRC but also loses his or her case in a foreigners tribunal, however, faces possible arrest and the prospects of being sent to detention center. तो ये सारी चीजें चल रही हैं। Clear? Now, दिस इज द कट ऑफ डेट। ये मार्च 24 1971 की जो डेट है, ये कट ऑफ डेट आइडेंटिफाई करी गई है। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो सेटअप किए जाते हैं फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत, राइट। 1964 का जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर है उसके तहत। अब दूसरी एक चीज ये है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रेगुलेट करती है। आर्टिकल्स 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम इंपॉर्टेंट। वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स आर एडमिसिबल सच एज बर्थ सर्टिफिकेट एंड लैंड रिकॉर्ड्स as long as these were issued before the cut off date. जो भी बर्थ सर्टिफिकेट्स कट ऑफ डेट से पहले इशू किए गए थे वो सब एडमिसिबल एविडेंस है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। क्लियर? नाउ एनी अदर डिटेल दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन? नो। Foreigners Act है special court that hears the cases related to the violation of Foreigners Act 1946. Foreigners Tribunal have been set up under Foreigners Tribunal Order 1964. Supreme Court has asked the center to discuss with the Bangladesh the process of streamlining the deportation of illegal migrants. This could well be an irritant between Bangladesh and India. Already Bangladesh is being approached by China, right? China has given the non-tariff duty lines to the Bangladesh to import goods, to export goods to China. Will there be any deportation? Although the Assam movement was for the deportation, Bangladesh has never officially acknowledged that any of its citizens migrated illegally to Assam. तो ये जो बांग्लादेश के लोग हैं ये persecution, they cannot vote, but it has been made असम के लोगों को लुभाने के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना कि उनको ये दिखाया जाए कि ये लोग वोट करेंगे। असम के इंडिजिनस पीपल विल वोट फॉर द पार्टी विच इज स्पीयर हेडिंग दिस मैटर, दैट इज बीजेपी। अब बीजेपी, वहाँ पे बीजेपी को इलेक्टोरल माइलेज भी मिली है। अब
जब इलीगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसमें किया जा सकता है बट उसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि फिर बांग्लादेश नाराज हो जाएगा, तो अब इसीलिए इसको ड्रैग किया जा रहा है। क्लियर? नाउ the final excluded would officially be non-citizens, but what happens to them remains a grey area, as Bangladesh has never officially acknowledged that any of its citizens migrated. बांग्लादेश की जो शेख हसीना गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है, already facing challenges from Nepal, China, and if the challenges would be there, and even Sri Lanka is also sitting in the lap of China, है ना? तो नेपाल, पाकिस्तान, चाइना नॉर्थ में तो ये चैलेंज क्रिएट कर ही रहे हैं। अब ईस्ट में इंडिया की डेमोग्राफिक, आप यहाँ पे ये चीज़ें अगर देखोगे तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी ये चीज़ें। जस्ट 1 मिनट, आई पुट अ मैप हियर। सी, यहाँ से हम कलादान मल्टी मॉडल हाईवे प्रोजेक्ट और ये सारा कुछ कर रहे हैं बांग्लादेश की मेनलैंड से एंटर होते हुए। ये है हमारा छोटा सा चिकन्स नेक, क्योंकि हम यहाँ से वल्नरेबल हैं बिकॉज दिस इज एट अ टारगेट फ्रॉम भूटान, और यहाँ से है ना ये जो चिकन्स नेक है, तो यहाँ से हम टारगेट पे बैठे हैं सीधा। अब अगर हम बांग्लादेश को भी ऑफेंड कर बैठेंगे सिर्फ ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो किया जा रहा है, राइट? असम को अपहेवल में, असम का जो अपहेवल है ये स्टार्ट किया गया एनआरसी एक्सरसाइज को रिवाइव करके, फिर उसको नेगेट करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कि चलो कुछ लोग जो हैं फिर इसमें रह जाएंगे। तो ले दे के कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप इसको करोगे तो आप यू विल एंड अप डूइंग मोर हार्म टू असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिकॉज यू आर क्लोजिंग द गेटवे फ्रॉम मेनलैंड इंडिया, वेस्ट बंगाल टू वाया बांग्लादेश टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना? यहाँ पे जो ट्रांस एशियन हाईवे हम बना रहे हैं, मिजोरम की तरफ निकलेगा, ये म्यांमार की तरफ निकलेगा, वो सारी चीज़ें तो हम कट ऑफ कर बैठेंगे अगर हमने बांग्लादेश के साथ एनिमोसिटी ले ली। अभी तो यहाँ पे शेख हसीना रूल कर रही हैं। अब अगर शेख हसीना के लिए, शेख हसीना जो कि प्रो इंडिया हैं, शेख मुजीबुर रहमान, he was the father of this prime minister and we had helped Sheikh Mujibur Rahman to liberate Bangladesh from Pakistan. बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब अगर शेख हसीना की जगह जो मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी है जो कि प्रो चाइना है, अगर इन सब इंडिया के वजह से बांग्लादेश की सरकार को पॉलिटिकली नुकसान होता है तो हमारे लिए चैलेंजेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज द मेन थिंग। अब आगे चलते हैं फटाफट। क्लियर है ये? Being stateless is not the same as being a refugee. India has refugees from Tibet, Sri Lanka and West Pakistan. Among them, only last group has the right to vote in Lok Sabha elections but not in assembly polls. For Tibetans, the government allows Indian citizenship with a rider that they move out of Tibetan settlements and forego refugee benefits. Under the Tibetan Rehabilitation Policy 2014, adopted in part by few states, refugees are eligible for certain benefits under the government schemes for labor, ration, housing and loans. So this is there. Now, focus on tribal council polls in Tripura. Parties get ready as elections likely to take place by year end. अब यहाँ पे देखोगे नोवेल कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टेप्ड अप द कैंपेन एक्टिविटीज कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्शंस टू त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। दिस इज द सेम ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हमने पहले किया था, कवर किया था पिछले दिनों, लास्ट वीक में। लाइकली टू टेक प्लेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इलेक्शंस वुड बी हेल्ड दिस ईयर दो modalities were yet to be finalized. The upcoming session of Parliament is expected to give assent to a bill to upgrade TTAADC as Territorial Council, which has been a long-standing demand of the indigenous political parties and forums. Both the BJP and its coalition partners, Indigenous People's Front of Tripura, they have been consolidating bases in tribal areas while the opposition is desperate to improve its strength. अब एक नया प्लैंक ढूंढा गया यहाँ पे, इनको ये दिखाया जा रहा है कि अपकमिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट में एक बिल पड़ा है जो पेंडिंग है, त्रिपुरा जो है ट्राइबल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाएगा, उसको टेरिटोरियल काउंसिल का दर्जा दे दिया जाएगा, विच हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ
indigenous political parties. Already this is autonomous district council. We had seen in our previous lecture that autonomous district councils has got more powers than tribal advisory council. Despite that, this lollipop is being given just to win the elections. Okay, that their demand for autonomy, you create a demand for autonomy and they will ask for autonomy. Some of these politicians, when they ask for autonomy, you tell them, okay, vote for us, we will give you the autonomy in the next session of the parliament. Once you give one group the autonomy, one Tripura state the autonomy, then demand increases from Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh has started asking for the same for Mon autonomous district council area and the other area, right? ये demands खुद raise करवाई जा रही हैं, कुछ ऐसा political challenges create करना, stability की जगह instigation ज़्यादा हो रहा है. As per 6th schedule, the 4 states Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram contain tribal areas which are technically different from scheduled areas under Schedule 5. Though these areas fall within the executive authority of the state, provision has been made for the creation of district councils and regional councils for the exercise of certain legislative and judicial powers. Each of the districts is an autonomous district and governor can modify or divide the boundaries of the said tribal areas by notification. Governor may by public notification include an area, exclude an area, create a new autonomous district, increase the area of any autonomous district, diminish the area of any autonomous district, alter the name of any autonomous district, define the boundaries of any autonomous district. तो थोड़ा सा और एडिशन में आप ये कर सकते हो, अगर किसी स्टेट को ट्राइबल ऑटोनमस 6 शेड्यूल स्टेट डिक्लेयर किया गया है तो गवर्नर के पास ये और पावर्स आ जाती हैं. क्लियर? सो दिस इज देयर 6th शेड्यूल आर्टिकल 244 के अंदर आता है. गवर्नर इज एम्पावर टू इंक्रीज, ये सब हमने पढ़ लिया. Acts of the parliament or state legislature do not automatically apply to the autonomous districts and autonomous regions or apply with specific notifications. Councils have also been endowed with wide civil and criminal judicial powers. Judicial powers. For example, establishing village courts. However, jurisdiction of these councils is subject to jurisdiction of the concerned High Court with the approval of the High Court only. The matter could be lodged with the approval of President, right? ये हमने उस दिन पढ़ा था. So this is there. Constitution of district councils and regional councils. There shall be a district council for each autonomous district consisting of not more than 30 members, of whom not more than 4 persons shall be nominated by governor and rest shall be elected. ये सारा कुछ हमने cover किया था, right? So as I had promised that I would be giving you the handout, here comes the handout. Clear? Each district council and each regional council shall be a body corporate by the name respectively of the district council, the name of the district, and the regional council shall have perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and can be sued. 125th Amendment Bill, it seeks to increase the financial and the executive powers of the 10 autonomous councils in the 6th schedule areas of the northeastern region. The amendments provide for the elected village municipal councils also. ये सारा कुछ है इसमें. And then village councils will be empowered to operate to prepare plans for economic development and social justice. Read a bit more of it and update the dictated notes given to you the other day. Yes, P. Kumar, what is the benefit of territorial council and how different is it? See, district council is for a particular area. Territorial council is for a larger area. Now in the territorial council, this is a district area, this is another district area. Territorial council mein there are some pockets in which other people are residing, okay, people of other community. So autonomous district council gets the right to determine the plans and policies for this particular district area. But when this jurisdiction increases to whole of the area, these pockets also are included. Clear? These pockets also. So the territorial council gets the right to determine about the policies and plans and gets the legislative powers with respect to these pockets.
Weekly roundup PPT, the drive link has been shared. As I said that we would not be able to share the entire PDF because it becomes too bulky. We can share the PPT PDF if you want. You can ask the team. They'll share it if you want. Okay. अब आते हैं इंटरनेशनल पे. घनी, अशरफ घनी names the Council for Peace deal with Taliban. It will be headed by Abdullah Abdullah. Afghanistan's president has appointed a council for the national reconciliation, which will have final say on whether the government will sign a peace deal with Taliban after what are expected to be protracted and uncertain negotiations with the insurgents. The negotiations were envisaged under a US Taliban peace agreement. तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने काउंसिल बनाई है नेशनल रिकन्सिलिएशन की, जिस काउंसिल की पावर रहेगी कि गवर्नमेंट एक पीस डील तालिबान के साथ साइन करेगी या नहीं, आफ्टर व्हाट आर एक्सपेक्टेड टू बी नेगोशिएशंस विच आर गोइंग टू बी प्रोट्रैक्टेड, डिले, मतलब लंबी खिंचेंगी ये सारी नेगोशिएशंस होंगी. उसके बाद अफगानिस्तान की ये काउंसिल, रिकन्सिलिएशन काउंसिल के लिए ये जो काउंसिल है फिर ये तय करेगी कि क्या तालिबान के साथ डील करनी है या नहीं. ये नेगोशिएशंस जो हैं यूएस तालिबान पीस अग्रीमेंट के हिसाब से करवाई जा रही हैं एज इंट्रा अफगान टॉक्स टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द वॉर टॉर्न कंट्री. ओके. द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन is made up of an array of Afghan political figures including current and former officials and 9 women representatives, one of whom was named Mr. Abdullah's deputy. Mr. Ghani also appointed former President Hamid Karzai to the council, but his predecessor rejected the appointment in a statement on Sunday. तो ये सारा कुछ चल रहा है यहाँ पे. जस्ट एक अवेयरनेस के लिए अभी इसको पढ़ेंगे. तो अशरफ गनी ने एक डिक्री इशू करी अगस्त 29 को. 46 मेंबर काउंसिल बनाई जा रही है, रेकन्सिलिएशन काउंसिल, लेड बाय हिज फॉर्मर राइवल इन दी लास्ट ईयर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब्दुल्ला अब्दुल्ला, हु इज नाउ इन दी गवर्नमेंट. देखो अफगान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई गई, ठीक है. अब इलेक्शन का जो वर्डिक्ट था वो कुछ फ्रैक्चर्ड था, जिसमें कि अशरफ गनी को दिखाया गया कि अशरफ गनी जीत रहे हैं. जानबूझ के यूएसए ने इलेक्शन कुछ ऐसा करवा दिया कि ना तो अशरफ घनी के पास में एब्सोल्यूट पावर रहे और उनका एक राइवल जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला. इलेक्शन के रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए 51-49, ठीक है, 51-49. अब अब्दुल्ला अब्दुल्ला सेड आई एम द प्रेसिडेंट एंड अशरफ घनी सेड आई एम द प्रेसिडेंट. इस प्रोसेस में हुआ क्या, अशरफ घनी को बना दिया प्रेसिडेंट और ये बना दिया प्राइम मिनिस्टर, काइंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर. वी कैन नॉट से दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर, बट उनको यहाँ पे ला दिया कि ये प्राइम मिनिस्टर है. अब अशरफ घनी के ऊपर जब प्रेशर है, क्योंकि अशरफ घनी को यूएसए एब्सोल्यूट पावर क्यों नहीं देना चाहता था, क्योंकि जब भी कोई राइवल पावर, जब भी कोई फॉरेन पावर किसी कंट्री में ऐसा यूएसए के जैसा या फ्रांस या ब्रिटेन जैसा खेल खेलती है, तो वो या तो पाकिस्तान इंडिया बना के जाती है या 2 लीडर बना जाती है, पपेट्स. तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज लाइक अ पपेट ऑफ यूएसए. अब क्या अशरफ घनी ने क्या स्मार्ट प्ले किया है, अशरफ घनी ने ये जो कहा जा रहा है, जो इम्पोज करी जा रही है तालिबान के साथ में डील, उन्होंने अब्दुल्ला अब्दुल्ला को उस 46 मेंबर काउंसिल का लीडर बना दिया, लेड बाय फॉर्मर राइवल, ठीक है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, हु इज नाउ इन द गवर्नमेंट. अब क्या होगा कि तालिबान के साथ में जो डील होने जा रही है वो कुछ इतनी स्मूथ तो होगी नहीं. तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला विल बिकम दी बली का बकरा हेयर. समझ में आया, ही विल बिकम दी मैन टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस थिंग. तो ये सारी डिस्प्यूट इंजीनियरिंग एज वी कॉल इट. क्लियर. लिंक इज शेयर्ड ऑन दी टेलीग्राम चैनल आदित्य, जो इंटीग्रेटेड जीएस बैच के लिए और करंट अफेयर्स राउंडअप के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप चैनल बना हुआ है. हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन इज मेड अप ऑफ एन एरे ऑफ अफगान पॉलिटिकल फिगर्स इंक्लूडिंग करंट एंड फॉर्मर ऑफिशियल्स. इसका फायदा क्या होगा, अब हामिद करजई या ये कह लो कि अशरफ घनी जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, अशरफ घनी की इमेज बची रहेगी. तालिबान की डील कौन करवा रहा है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला. तालिबान की डील को बाद में भी लोग ब्लेम करेंगे, अफगानिस्तान की जनता ब्लेम करेगी. तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला का जो पॉलिटिकल कद है, जो स्टेचर है, वो नीचा हो जाएगा. तो रिसेंटली तालिबान हैज़ डिसाइडेड, दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस रिलेटेड न्यूज़, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे तो अच्छा होगा.
right? Ghani also appointed former President Hamid Karzai to the council, but his predecessor rejected the appointment because Hamid Karzai, former president of Afghanistan, is very intelligent, and Ghani by offering Hamid Karzai to get himself as the chairperson of the council, get himself the post of chairperson of the council. President Hamid Karzai is intelligent. He understood कि ये मेरा जो है बदनामी कराने वाला काम करवाया जा रहा है, तो he rejected the appointment, right? Then Abdullah को finally लगा दिया गया. This has come as a relief for Afghans who have seen unabated violence despite a peace agreement between insurgents and the USA. This is the third official respite. तो ये सब चल रहा है यहाँ पे. अब आगे चलते हैं. Now this is their winding down war, the signing on Saturday of an agreement. ये एक agreement चल रहा है, इसके contours क्या हैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की, right? Hezbollah open to a new Lebanon pact proposal. Hezbollah जो कि एक insurgent group है, आप यहाँ पे देखोगे कि we all know this territory, Israel, Palestine. यहाँ पे जो group है, यहाँ पे जो strip है, गाज़ा strip जिसे हम कहते हैं, गाज़ा strip में Hezbollah group एक्टिव है, और इसके अंडर जो पैलेस्टीन का जो बाकी का एरिया है, दिस एरिया एज आई एम ड्राइंग, तो ये पैलेस्टीन के एरिया में जो पैलेस्टीन की पॉलिटिकल पार्टी है वो एक्टिव है, जो कि रिलेटिवली इंसर्जेंसी ग्रुप नहीं मानी जाती. अब लेबनान ने ये ऑफ़र दिया है, लेबनान को हिजबुल्लाह ग्रुप को लेबनान का ये ऑफ़र है कि आप अगर ये डील साइन करना चाहते हो. हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं हसन नसरल्लाह, he said that his powerful Iran-backed Shia movement is open to a French proposal for a new political agreement for Lebanon. तो इस अग्रीमेंट में क्या होगा कि जो चीज़ें फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इसमें कही हैं, ही वॉज ड्यू बेरट में जो ब्लास्ट हुआ लेबनान के एरिया में जो इजराइल ने करवाया, उसके बाद अब यहाँ पे पॉलिटिकली वॉलेटाइल सिचुएशन है. तो फॉर हिज सेकेंड विजिट इन लेस देन 4 वीक्स टू प्रेस फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म, फ्रांस ये चाहता है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म हो और रिकंस्ट्रक्शन हो इन पैरेलल विद द स्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेशंस टू नेम अ न्यू लेबनीज प्रीमियर. Western leaders have joined calls from Lebanese at home and abroad for deep-rooted political change after the explosion at Beirut port. अब लेबनान के लोगों को ये लग रहा है कि ये हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की लड़ाई में ईरान का तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लेबनीज़ लोगों की जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी है वो खतरे में है. On his latest visit to Lebanon, we heard a call from the French president for a new political pact in Lebanon. Today we are open to a constructive discussion in this regard, Mr. Nasrallah said in a televised speech. But we have one condition. This discussion should be carried out with the will and consent of the various Lebanese factions. Mr. Nasrallah said his movement would be cooperative in the formation of a government capable of spearheading reform and reconstruction. तो हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि हम इस नई, अब ये लोग भी छोड़ने नहीं देना चाहते पावर को, है ना, कि कहीं सिविलियन इलेक्शन वगैरह करवाया गया तो पूरा ही नुकसान हो जाएगा. हिजबुल्लाह के चंगुल से ये लेबनान निकल जाएगा. क्लियर प्रणव? ये जो आप कह रहे हो ना इजराइल पैलेस्टीन, देखो करंट अफेयर्स के वे में इसको थोड़ा सा चलने दो. अब अगर मैं इसमें लेबनान का वो पूरा समझाने बैठ जाऊंगा ना, सॉरी इजराइल और पैलेस्टीन का, तो हम डिविएट हो जाएंगे. इजराइल पैलेस्टीन की एक बार किसी दिन डिस्प्यूट कुछ ये न्यूज़ में आने दो, उस दिन वो पूरा कवर किया जाएगा, राइट. वी कैन नॉट गो अ ड्रिफ्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक या कुछ ऐसा. प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जिस दिन ये टॉपिक न्यूज़ में आएगा, इट इज़ इन माई नॉलेज. एंड हैव यू गॉट द PDF हैज़ ऑल्सो बीन पिन्ड. जस्ट 1 minute. प्रणव को बुलाओ. जो उस दिन PPT शेयर करी थी ना वीकली करंट अफेयर्स राउंड अप वाली, उसका PDF कन्वर्ट हो गया था. जो उस दिन PPT शेयर की थी वीकली करंट अफेयर्स वाली, उसका PDF हो गया PPT फाइल. वो ग्रुप पे शेयर कर दो, करंट अफेयर्स राउंड. इट हैज़ ऑलरेडी बीन शेयर्ड गाइज. उसको पिन कर दो. पिन भी है, दोनों चीज़ें हैं. IGS वाले बैच में भी पिन है, IGS वाले बैच में भी कर दो.
उसमें भी हो रखी है, तो आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हो बीच बीच में। Before coming in for the class, I already told them to do this. Please check it once and then comment, right? Otherwise आप लोग की क्लास का ही रिदम टूटेगा, है ना। इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, जीएस मेंस पेपर 3. सो दिस इज देयर। इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल टॉय हब। अब ले दे के खिलौनों पे उतर आए हैं प्रधानमंत्री। नाउ पीएम अर्जेस एंटरप्रेन्योर्स टू टैप इन टू ₹7 लाख करोड़ इंडस्ट्री। बच्चों के खिलौने की इंडस्ट्री जो है 7 लाख करोड़ रुपए की है। बहुत अच्छे। प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू टीम अप फॉर टॉयज। अभी वोकल फॉर लोकल, asking startups to be vocal for local. PM told them to develop computer games in and based on India, citing the recently conducted App Innovation Challenge. Global toy industry is of more than ₹7 lakh crore. Such a big business, but India's share is very little in this. Now just spare a thought for a nation which has so much of heritage, tradition, variety. तो मन की बात में अच्छी अच्छी बातें करते हो प्राइम मिनिस्टर। तो अब आपको ये देखना है कि टॉय सिटी कहाँ है, चन्नपटना। आर्टिसंस अवेट गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो यहाँ पे अब एक फिलिप दिया जा रहा है इस इंडस्ट्री को भी। टॉयज इन द एरा ऑफ प्ले स्टेशन, PS5, PS4, ओके। PS4, PS5. Okay, I'm giving you the map work today. Just answer where is Golan Heights, okay, and the countries touching this Mediterranean Sea. Countries touching Mediterranean Sea, and what is the name of the site? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। आर्मेनिया में जहाँ पे कि वॉर मेमोरियल बनाया गया था, जहाँ पे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने विजिट किया था। फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के जो थे, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने विजिट किया था। तो टर्की और इंडिया के बीच में इशू चल रहा है, राइट। साइप्रस के पास कौन सी सी है, कौन सा एक ऐसा आइलैंड है जो कंट्रोवर्सीज में आजकल। स्पेन का एक ऐसा प्रोविंस, देयर इज वन प्रोविंस ऑफ स्पेन अराउंड विच अ डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन कि वो प्रोविंस जो है अलग होना चाहता है क्योंकि उसका GDP बहुत ज़्यादा है। ये मैं पूछ चुका हूँ पहले। और कतर और ईरान एक गैस रिजर्व शेयर करते हैं। सबसे, ये वेस्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट गैस रिजर्व माना जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट? ओके, सो दिस इज मैप रिलेटेड। एंड ट्रॉपिकल लाइन अफ्रीकन, कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज से होके गुजरती है? ट्रॉपिकल लाइन कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज से होके निकलती है? दीज आर द क्वेश्चंस। ओके, क्रेटी आइलैंड, यस। Catalonia. Catalonia is the name of the province, right? And Black Sea के special features क्या हैं, right? Black Sea के special features, कुछ कुछ ये चीज़ें आंसर करोगे। तेहरान में, यहाँ पे ईरान में एक पोर्ट है। What is the name of that port? It starts with B. Name of B, right? सिनाई पेनिनसुला कहाँ पे है? सिनाई पेनिनसुला इज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? राइट, देन अभी के लिए, आज के लिए तब बहुत है, ठीक है। इस मैप से जितना था मैंने बता दिया, पूछ लिया। तो टॉय हब के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया है, इन अ टॉय सिटी ऑफ आर्टिसंस अवेट गवर्नमेंट असिस्टेंस। सो दिस इज देयर। विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज thrust on going vocal about local toys in his Mann Ki Baat radio program be matched with policy initiatives to shore up financial returns for the artisans to retain them in the traditional sector? That is the question asked by the stakeholders in Channapatna. This is Ramnagaram district of Karnataka. तो इसको नोट कर लेना कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चन्नपटना is famous for what? Where is it located? ठीक है, which has earned the sobriquet of a toy city or Gombegala Oru. The concerns are real as the number of skilled artisans is dwindling and the new generation is loath to enter the business owing to inadequate returns. तो नई जनरेशन इसमें नहीं आना चाहती। नेचुरल सी बात है, इन द एरा ऑफ डिजिटल गेमिंग, इन द एरा ऑफ इंटरनेट ओरिएंटेड गेमिंग, क्या ये हम टॉय इंडस्ट्री को या ये बच्चों के अराउंड जो चीज़ें हैं
उसको हम लाइव रख सकते हैं, ये एक चीज़ें हैं। कोविड-19, व्हाट आर दी, क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है, व्हाट आर दी चैलेंजेस, इसका आंसर भी देखेंगे अभी थोड़े दिन में। व्हाट आर दी चैलेंजेस इन दी way of India becoming a global toy hub? What are the challenges in the way of India becoming a global toy hub? ठीक है, तो a further delay in the revival of the sector may see many skilled artisans moving away. Some artisans have shifted to being vegetable vendors or have entered construction sector. तो ये सारी चीज़ें, this will have a bearing on the future of traditional business. तो ट्रेडिशनल टॉयज़ के साथ साथ हमें 21st सेंचुरी टॉयज़ पे भी फोकस करना होगा। हॉट व्हील्स की कारें हैं, है ना, ये सब चीज़ें जो छोटे छोटे खिलौने हैं, उसको हमें न्यू लुक भी देनी होगी। अर्बन क्लास, अर्बन सेक्टर ओरिएंटेड टॉयज़ होने चाहिए। इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, तो हमें अपने डोमेस्टिक टॉयज़ भी अगर चाइना से ख़रीदने पड़ रहे हैं, हैंड हेल्ड गेम्स एंड ऑल, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी एज वेल एज इन एक्वायरिंग द इंटरनेशनल पाई। Now, diversification and innovation had helped. This has helped many manufacturers fare well despite the challenges. So, manufacturing of toys in Chanpatna goes back to at least 200 years. State-wise distribution of toys manufacturing units, Andhra Pradesh सबसे ज़्यादा आ जाता है दिल्ली में, राइट? तो ये है इसका, कोई ये पूछेगा नहीं, बट एक आइडिया होना चाहिए। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ वर्कर्स, टॉय ट्रेडर्स वांट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर सस्पेंडेड। अब ऑल ऑफ अ सडन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो ला दिया गया है विदाउट हैंड होल्डिंग बाय द अथॉरिटीज, दिस इज व्हाट इज बीइंग रेजिस्टेड बाय द टॉय इंडस्ट्री। The complexity of Scheme 1 of QCO and the challenges in adhering to the September 1, 2020 timeline will have a devastating impact on the industry. Hence, there is a need for further suspending of the order. The government must constructively first engage with them and then impose something. Then that will be readily accepted. Industry to formulate a comprehensive policy for domestic and overseas manufacturers. So this is their overview of toys quality control order. This relates to the regulation of toys and or materials for the use in play by children under 14 years of age. The order has been issued by Department of Industrial and Investment, Department of Industrial Policy and Trade, Ministry of Commerce and Industry. Order may several provisions for toy safety, requirement for toys to conform the latest version of a list of Indian standards, requirement for toys to bear standard mark under a license from Bureau as per Schedule 1 of Schedule 2 of the Bureau of Indian Standards. ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस Indian Standards लिख दोगे हो जाएगा। Clear? So this is there now. This is the detailed thing. Under the scheme, ISI mark is granted to the factories which are actually producing the goods and products by BIS, which is National Standard Body of India. Main objective of BIS is to ensure that products that are delivered to the end consumers are safe for their use. ये सारा कुछ है इसमें। Now coming to Haldi. Haldi loses its flavor amid pandemic. Despite a geographic information tag, the lockdown has meant meager sales of the organic tuber. So turmeric is the main cash crop of tribal people in Kandhamal. Apart from domestic use, turmeric is also used for cosmetic and medicinal purposes. More than 60,000 families are engaged in growing the variety. The crop is sustainable in adverse climatic conditions as well. So this is the property, right? ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, adverse climatic conditions. तो ये सारा कुछ चल रहा है। Kandhamal haldi is GI tagged. Okay. Now, Kandhamal haldi of Odisha got GI tag recently. More than 60,000 families are engaged in this. Now, technical evaluation committee comprising research scientists, IP experts met on January 9, 2020 to review the test reports. ये सारा कुछ हो रहा है। इसके बारे में याद रखना, कांदमल हल्दी के बारे में GI टैग पूरा किसी ना किसी दिन कवर किया जाएगा। Now, for the first time, he has written, he is opening up the Urjit Patel, right, former RBI governor, his book named as Overdraft, Saving the Indian Savers. So this book has talked about the challenges and all.
Non-performing assets increase the borrowing cost for every Indian, everyone in the economy, including the good borrowers, warns the former RBI governor. In his first interaction after this release of the book, in India, our macroeconomic challenges always had macroeconomic sources. Our macroeconomic problems क्या होती हैं, कोई बताएगा? मैंने उसी दिन बताई थी क्लास में थोड़े दिन पहले. This is something I had explained the other day. So our macroeconomic problems, जैसे कि current account deficit etc., they have created financial sector problems, over borrowing by the government, fiscal deficit का ज़्यादा होना. The current banking challenge is most intractable one even before COVID. We have a tendency to make a premature pronouncement of victory over any challenge that we desire to solve. We get tired very quickly. Look at fiscal policy. From very high levels of fiscal deficit, we would have a couple of years of very modest declines. So from a very high level, we could go to a slightly lower high level of every slower. We could go to a slightly lower high level, and everyone says we have now had too much fiscal consolidation. So let's get back to our usual norm of high fiscal deficit. Bad debts में भी यही हो रहा है. He says this does not lead to good outcomes. It just accentuates the problem by storing them up. Regulator like RBI is perceived so because of its actions to be pliable for rollback of regulations that it puts out. तो pliable मतलब RBI is very soft. Pliable मतलब किसी को push किया और वो मान गया, right? जैसे आजकल शक्तिकांता दास के टाइम पे हो रहा है. Once a regulation has been issued, why is there an expectation that with enough pulls and pressures by business lobbying etc., things will get diluted? That's the credibility part of the regulator, which he has described as being soft, being pliable. Legally, important parts of the Banking Regulation Act are not applicable to the government banks. This does not tie the hands of the banking regulator in important ways. Restructuring of assets started in this particular phase before COVID-19. For example, to February 2020, when the real estate commercial sector was allowed to restructure, which basically means that you kick the can down the road. यानी कि या तो फिर आप जो फालतू के खोखले एसेट्स हैं आप उनको डिस्कार्ड कीजिए और बैड डेट्स को हेड ऑन रिजॉल्व करना शुरू कीजिए. वे इफेक्टिवली इंक्रीज द रिपेमेंट पीरियड, मे बी मेकिंग इट into a new loan, evergreening etc. Consequences क्या होते हैं? That the bank's balance sheet once again does not convey the true nature of their asset book. अब देखो यहाँ पे अगर कोई एक लोन है वो 2020 में उसकी EMI ड्यू है. अब अगर वो लोन नहीं पे हो रहा तो आप उसे एसेट दिखाते हुए चल रहे हो. आपने बोला कि ठीक है ये लोन 2025 में पे होगा क्योंकि आपने रीपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया. बट क्या आपको बैंक की बैलेंस शीट की एक्चुअल वैल्यू पता है? क्योंकि हो सकता है ये लोन ऑलरेडी डेड लोन है, एनपीए हो चुका है ये, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग में आपने ये रिलैक्सेशन इसको दे दिया. प्रॉब्लम यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, राइट? प्रॉब्लम इज देयर बट यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग. आप ये कह रहे हो कि ठीक है इसे बाद में करवाएंगे. दैट इज लाइक सेइंग दैट देयर इज एन एलिमेंट इन योर बॉडी विच यू आर नॉट गेटिंग टेस्टेड or which you have got tested but you are shrugging off the report. मेडिकल रिपोर्ट को आप डिस्कार्ड कर दे रहे हो कि ये 2025 में देखेंगे. हो सकता है 2025 में ये ठीक हो जाए, ये एसेट पे करना शुरू कर दे. कॉन्सिक्वेंस इसका ये होता है बैंक की बैलेंस शीट लाइबिलिटीज तो है ही, डिपॉजिटर्स का पैसा जो देना है 20 लाख करोड़ अगर बैंक्स के एसेट्स हैं, यहाँ पे भी 20 लाख करोड़ हैं, लेकिन ये जो एसेट है 9,000 करोड़ रुपीज़ का लोन ये एक्चुअल में है ही नहीं.
बट 9000 रुपीज़ के डिपॉजिट्स को जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ हमारे एसेट्स अच्छे हैं, दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं, आप इसको बैलेंस शीट में एक डेकोरेशन पीस की तरह रखते हो. A wheel, a curtain of false legitimacy to hide the true nature of asset. This phrase has been used since 2001 when the corporate restructuring mechanism started. We need to be very cautious on how we proceed down this road. It always gives us a short-term gloss of cleanliness. शॉर्ट टर्म में तो ये अच्छा लगता है, ठीक है, ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, बट एवरीवन नोज दैट इट इज बेसिकली डन टू हाइड द बैड एसेट्स. इट मेक्स द बैंक्स बैलेंस शीट untidy and adds to the banking sector's risk perception. There have been other instances, पहले भी ऐसा हो चुका है, which were of regulatory policies which had been put in place after 2014 to help with the financial stability. Those have also been reversed since 2019. There has been a series of these things that have happened, including defining what constitutes a default. Last year and a half, we have seen a fair bit of reversal in the ecosystem of resolution and liquidation. The discomfort, the February 2018 में discomfort पैदा तब हुआ जब लार्ज डिफॉल्टर्स को ये कहा गया कि सेक्शन 35AA, सेक्शन 35AB के तहत काफ़ी सारे बैंक्स के एसेट्स को, MSMEs को एक लिमिट दी गई कि आप अब लोन पे कीजिए, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया. गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, RBI ऐसा नहीं करेगा. व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ रिफ्रेनिंग केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट रेजोल्यूशन विद इन अ डे ऑफ डिफॉल्ट? RBI ने ये सर्कुलर इशू किया कि एक दिन के डिफॉल्ट पे भी, क्योंकि क्या हुआ कि कॉम्प्लेसेंसी आने लग गई है अब इस सिचुएशन से. RBI एक नॉर्म लेके आता है कि 90 डेज के अंदर जो लोन नहीं पे करेगा उसको बैड डेटर करार दे दिया जाएगा. गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो बी सॉफ्ट ऑन दीज लोन्स, कि ये कॉर्पोरेट जो है अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है तो इनको आप बैड डेटर डिक्लेयर मत कीजिए, इनको उल्टा और लोन लेने के लिए इनकी क्रेडिट रेटिंग को गिराइए मत, इनको बैड डेटर आप डिक्लेयर कर देंगे. RBI अगर बैंक्स को ये कहेगा कि जो लोन नहीं पे कर रहा 3 महीने में उसको बैड डेटर डिक्लेयर कर दो, तो वो और लोन नहीं ले पाएगा. अब RBI ने जब देखा कि ऐसा बार बार हो रहा है, 6 महीने का लोन हो गया नहीं पे किया, फिर भी ऐसा गवर्नमेंट के कहने पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एक्सटेंशन दे दिया. उससे हुआ क्या, एक इनडिसिप्लिन क्रिएट हो गया. लोगों ने बैंक्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने, अनिल अंबानी जैसे लोगों ने लोन्स को एवरग्रीन करवाना शुरू कर दिया. बार एवरग्रीन, जो जिसे हम डेट रीस्ट्रक्चरिंग कह रहे हैं, टाइम आया फिर दोबारा रीस्ट्रक्चर कर दिया, फिर अगले 2022 में देना, फिर 2024 में दे देना, कोई बात नहीं. तो ऐसा होता गया. जो 2018 में ड्यू था उसे बोला 2019 में दे देना, कोई बात नहीं, 2019 वाले को 20. अब जब ये सिचुएशन चलती आ रही थी तो 2018 में RBI ने ये कहा कि अब अगर 3 महीने छोड़ो, अगर एक भी दिन का डिफॉल्ट हुआ तो हम आपको बैड डेटर डिक्लेयर कर देंगे. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का मतलब ही यही था कि फास्ट पेस्ड रेजोल्यूशन. लेकिन गवर्नमेंट के कहने पे रेगुलेटर को बार बार प्लायबल बना दिया गया, मतलब सॉफ्ट बना दिया गया कि हमारी बात एक्सेप्ट करो. जब RBI अपनी आई पे आया, RBI ने ये सब कहा तो सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार और कॉर्पोरेट बोरोवर्स. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेक्शन 7 यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर RBI के कहेंगे कि ये नहीं लागू करने, तो RBI लागू नहीं कर सकता. अब RBI के फॉर्मर गवर्नर ये कह रहे हैं कि केसेस फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो थे, क्या लॉजिक था कि उन्हें डिले किया गया. एंड रिफ्यूजिंग स्पेशल कंसेशंस फॉर एग्जेम्पशंस सिलेक्टिवली फॉर द पावर सेक्टर, जो हमने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा था. जो लोग कॉन्टिन्यूअस हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा, रियल एस्टेट सेक्टर में जो डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है. right, have the Supreme Court's decision to strike down the February 2018 circular and RBI's replacement circular of June 2019 hurt the IBC reform. IBC रिफॉर्म में से हवा ही निकल गई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि IBC के तहत RBI की ये पावर्स नहीं हैं. What has happened is that instead of having a rules-based process by which assets are recognized, resolved and liquidated, we go back to an ad hoc approach कि करेंगे या नहीं करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे. समझ में आया?
तो आईबीसी लाने का पर्पस ही खत्म हो गया फिर तो, जब रूल्स बेस्ड अप्रोच नहीं है. एवरी सेक्टर, इफ नॉट एवरी बोरोवर, कैन कम अप विद अ गुड रीजन ऑन व्हाई ही और शी डिड नॉट सर्विस द लोन क्यों नहीं पे किया. हर सेक्टर के पास एक रीज़न होना चाहिए कि लोन क्यों नहीं रिपे करवाया गया या क्यों नहीं पे किया गया. सेक्टर यानी कि स्टील सेक्टर के पास रीज़न तो हो, टायर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर. अब अगर बिना रीज़न के उनके एडहॉक मनमाने तरीके से उनको एक्सटेंशंस दिए जाएंगे तो एक कल्चर ऐसा हो जाएगा कि अंबानी के पास पैसे तो होंगे लेकिन वो बोलेगा कि है नहीं. राइट. It is possible to do that at any point in the economic cycle, but no one mentions the years of over borrowing and reckless lending. 2005-6 में ये ओवर बोरोइंग जो करी गई, 2006 में विजय माल्या को लोन्स दिए गए या इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दिए गए. इट इज़ कॉस्टली टू वॉलेट द प्रिंसिपल दैट यू हैव टू डू योर डेट सर्विसिंग एट अ पॉइंट इन टाइम. तो ये सारा कुछ समझाते हुए यहाँ पे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर. तो ही हैज ओपन्ड हिज माउथ आफ्टर फर्स्ट टाइम आफ्टर रिजाइनिंग. राइट. ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं. अबाउट द लाइकलीहुड ऑफ मीनिंगफुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स, द पॉइंट इज दैट इफ द गवर्नमेंट ओन्स दीज बैंक्स, द टेम्पटेशन टू यूज देम एज टूल फॉर डे टू डे मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज जस्ट टू हाई. टेम्पटेशन टू यूज देम मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे पता है क्या कह रहे हैं, आज का फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना है, चलो भैया बेच दो बैंक. ये बहुत हाई है. ठीक है. ये इसका जो टेम्पटेशन है ये बहुत हाई है कि आज खर्चा चलाना है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, बैंक बेच दो. इट इज़ वेरी टेम्पटिंग दैट इफ वी नीड टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ देन वी हैव अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज इवन मोर सो दैन द मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करोगे, रेट कट करोगे, लेकिन यहाँ पे तो बैंक को सीधा सीधा कहा जाता है कि भैया लोन दो. पब्लिक सेक्टर बैंक को कहा जाता है लोन दो. इफ इट वर टू प्राइवेटाइज ऑल दीज बैंक्स then government would lose a very important instrument in its toolkit for tactical macroeconomic management. Very rightly said by the governor. जब former governor, जब 2007-8 में रिसेशन आया था, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल के वे से बैंक्स को, सरकारी बैंक्स में 40,000 वैकेंसीज क्रिएट करी गई थी, रिकॉर्ड वैकेंसीज. उसी टाइम पे IBPP एग्जाम लाया गया था, IBPS, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग पर्सनल. राइट. सॉरी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन. राइट. ये क्राइटेरिया उस टाइम पे लॉन्च किया गया. मनमोहन सिंह, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट सो ही न्यू इट. आज भी जब कभी कुछ क्राइसिस होता है, इस बार भी सरकारी बैंक्स को के चलते ही ये मेजरली कहा गया कि मॉरेटोरियम लगा दिया जाएगा लोन्स पे. सरकारी बैंकों को कहा जाता है कि आप लोन दो. कीन्जियन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट की किटी में, गवर्नमेंट की टूल किट में. कीन्स ने ये कहा था ना कि सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे. अब आज के एरा में गवर्नमेंट के पास इतने पैसे तो है नहीं कि सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे. आज के पैसे को खर्चा चलाने के लिए अगर गवर्नमेंट अपना ये इंपॉर्टेंट टूल भी बेच देगी तो आज तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मैनेज हो जाएगी, लेकिन कल जब कभी ऐसा होगा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होगा, आज तो गवर्नमेंट सीधा कहती है कि हम एक नया फंड लेके आ रहे हैं. निर्मला सीतारमन ने कम से कम 50,000 बार ये मेंशन किया होगा कोविड-19 में कि 50,000 करोड़ रुपीस का MSME का रीस्ट्रक्चरिंग फंड हम लेके आ रहे हैं और उनको क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड हम बना रहे हैं, जिससे क्या होता है कि वो बैंक्स जो हैं MSME सेक्टर को लोन देंगे. MSME सेक्टर हौसला बना के ग्रोथ करेगा और फिर इकोनॉमी का वर्चुअस साइकिल बूम की तरफ बढ़ने लगेगा. राइट. अब अगर ये टूल भी बेच दिया जाएगा तो फिर बचेगा क्या? समझ में आया? मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि फिस्कल डेफिसिट, जैसे ग्रोथ अगर कम हो रही है, if a slowdown in the growth is being witnessed, then मैक्रो इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, अब ग्रोथ अगर GDP का नंबर डाउन जा रहा है, क्वार्टरली नंबर, तो दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पुअर इंडिकेटर, दैट इज अ पुअर इंडिकेटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इसको रिकवर करने के लिए आप क्या करोगे, बैंक्स को ये बोलोगे कि पैसा ज़्यादा लेंड करो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, MSMEs को और हॉकर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को.
मनरेगा को जो है या जनधन योजना अकाउंट्स में 2-2 हज़ार रुपये डिपॉजिट कर दो, पैसे आ ही जाएंगे। ये सारा काम बैंक्स के ज़रिए होता है, मैक्रो इकोनॉमी को मैनेज करने का काम। मैक्रो इकोनॉमी का मतलब यही रहता है कि जीडीपी का नंबर डाउन जाना, इन्फ्लेशन डाउन जाना, ग्रोथ कम होना, ये सारी चीज़ें। अभी जब तक बैंक सरकार के हैं तब तक ये काम करने में सरकार को आसान है, कल को जब बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तब कैसे करोगे? One of the main points that given the state of public finances of the country, it will be difficult for the government to have a dominant banking sector and keep to its fiscal target. सिर्फ इसलिए कि आज की situation खराब है, which it has not been doing anyway, right? ये मेन पॉइंट्स ये है कि पब्लिक फाइनेंसेस जो है सरकार के खराब चल रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए बैंकिंग सेक्टर के एसेट्स बेच दो। एंड थर्डली, टू हैव इंडिपेंडेंट रेगुलेशन because one of the touchstones by which additional regulation is put into effect is, what is the implication of this on the government banks and then government fiscal balances, because government may have to put in money to recapitalize banks. यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये कि अगर बैंक के जो डर्टी एसेट्स हैं, डर्टी मतलब एनपीएज का जो टोटल एनपीएज हैं उसका, एनपीएज इज द डिनोमिनेटर हियर, एटलीस्ट 9.5% ओनर का कैपिटल होना चाहिए। अब ओनर कौन है? गवर्नमेंट। अब अगर रेगुलेटर, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो कोई भी नॉर्म लेके आने लगता है तो सबसे पहले उसे इस पत्थर पे रखा जाता है कि इस नॉर्म का, ये मान लो कि टच स्टोन है, टच स्टोन होता है जिसपे गोल्डस्मिथ वो सोने को रगड़ के देखता है कि ये सही रहेगा या नहीं। तो यहाँ पे किसी भी रेगुलेशन को, कोई भी रेगुलेशन है उसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस पर रगड़ के देखा जाता है। अब अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 9.5% कैपिटल उनका अपना होना चाहिए, टोटल एनपीएज हैं 1 लाख के, तो यानी कि 9,500 सरकार का इसमें इन्वेस्टेड होना चाहिए हर 1 लाख रुपए के लिए। लेकिन सरकार तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती क्योंकि रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसे चाहिए। इसीलिए रेगुलेटर को बोला जाता है कि ये नॉर्म जो है 9.5% कैपिटल, ओनर्स कैपिटल होने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिल नॉर्म्स। कैपिटल कितना अपना कैपिटल होना चाहिए, इसको पुश कर दिया जाता है। 2019 में ये होना था, इसको 2020 में पुश कर दिया। अब 2020 में कोविड आ गया तो 2022 कर दिया। ये जो दिक्कत है इसमें क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बिना पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी एक्सटेंशन मिल जाता है, right? Risk to the economy is that we should not get into a situation where the standard of banking regulation is determined by the state of government banks and the fiscal balance of the government. Clear? समझ में आया? अब अगर पब्लिक सेक्टर के पास सरकार जो ऑनर है अपना इक्विटी शेयर मेंटेन करने के लिए, एसबीआई में मान लो कि सरकार की ऑनरशिप 55% है, इसको बरकरार रखने के लिए सरकार क्या करेगी? 9.5% और इन्वेस्ट करेगी, नहीं तो ये रेशो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? जिसे हम बेसिल नॉर्म्स कहते हैं, या ऑनर्स कैपिटल रेशो जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अब अगर ये रेशो खराब हो गई यानी कि गवर्नमेंट को किसी और प्राइवेट सेक्टर को लेके आना पड़ेगा। चॉइस क्या है? या तो गवर्नमेंट अपनी इक्विटी डाइल्यूट करे, किसी और को बोले कि हम तुम्हें 5% शेयर्स देते हैं, तुम इसमें एसबीआई में पैसा लगाओ, तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% से कम हो जाएगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है ओवरऑल वो तो रिस्की नहीं होगा कि बैंकिंग सेक्टर में ऑनर के जो डिपॉजिटर्स के पैसे हैं उस पे बैड डेट्स का एक्सटेंट 90% से भी ज़्यादा हो गया तो नुकसान हो जाएगा ना। अगर कल को ये सारे बैड एसेट्स जो हैं, आफ्टर ऑल दे आर डिपॉजिटर्स मनी, if the depositor comes back at one point, all the depositors they come back and ask the bank for its money, bank would not be having even 10% of its own money to make up for the loss of bad assets. Is this point clear to everyone? The other risk that we may risk having the dual regulatory system where some strictures are diluted for the government banks and things are kept as they are for the private banks. Private sector banks इसे accept नहीं करेंगे. If the fiscal situation becomes even more difficult and recapitalization by the government becomes even more of a challenge, then that is the kind of regulatory risk that may come about.
तो ये था बैंकिंग सेक्टर से। पुअर एयर क्वालिटी इन स्मार्ट सिटीज ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर्वे ऑफ 6 cities in Maharashtra reveals poor convergence between authorities and underutilization of data. तो दिस इज बाद में इसको किसी दिन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसका पूरा एनालिसिस रहेगा। एयर क्वालिटी अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। Parisar, a Pune-based NGO, prepared the report after surveying 6 smart cities: Pune, Nasik, Aurangabad, Nagpur, Thane, and Solapur. Though it was mandatory for each city to report on their air quality under the smart cities mission, there was no logic as to why the civic bodies in these cities proposed certain projects ostensibly to improve the air quality. Recapitalization का मतलब ये होता है, अभी मैं थोड़ा अच्छे से इसे समझा रहा हूँ। आई एम रनिंग अ बैंक, ठीक है, आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ SBI। बैंक की लाइबिलिटीज होती हैं। लेट मी यूज अ न्यू PPT, यूज अ न्यू स्लाइड। लाइबिलिटी क्या होती है? बैंक इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बैंक के शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल है कितना परसेंट? 100 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। 100 करोड़ रुपीज इज ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट आर द एसेट्स ऑफ अ बैंक? बैंक ने जो किसी को लोन दिया है, किंगफिशर को, दैट इज एन एसेट, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपीज। नाउ डिपॉजिटर्स मनी, डिपॉजिट्स कितने हैं जो आपने, मैंने SBI की बैलेंस शीट में जो पैसा डिपॉजिट किया वो है 100 करोड़। ये मान लो 1 लाख करोड़ रुपीस हैं, ठीक है, 1 लाख करोड़। नाउ लोन्स लेंट, टोटल लोन्स लेंट बाय बैंक इंक्लूडिंग दी वन टू किंगफिशर इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स कितने हैं बैंक के? 2 लाख करोड़ मान लेते, ठीक है। 2 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं और 2 लाख करोड़ बैंक के लोन्स हो गए। 2 लाख 100 करोड़ यहाँ पे भी टोटल होना चाहिए, 2 लाख 100 करोड़ यहाँ पे भी टोटल होना चाहिए, राइट। यही होना चाहिए ना, 2 लाख 100 करोड़, क्योंकि शेयर कैपिटल है। अब बेसिल नॉर्म्स ये कहते हैं कि बैंक का जो अपना कैपिटल है, अगर ये एसेट बैड एसेट है तो ये कितना परसेंट है टोटल लोन्स का? टोटल लोन्स का कितना परसेंट है? 2 लाख का 10,000, 5%, 20100 का 5% हो गया ना। ये हैं हमारे NPAs। अब बेसिल नॉर्म्स ये कहते हैं कि इन NPAs का, दिस इज NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एन एसेट विच इज नॉट परफॉर्मिंग, यानी कि एसेट इज नॉट गिविंग यू एनी रिटर्न। अब इस एसेट का जो 5% है, जो 10% है, 10,000 करोड़ का 10,000 करोड़ इज द बैड एसेट, ठीक है। इस 10,000 करोड़ का 10% कितना हुआ? 9.5% कितना हुआ? 950 करोड़। 950 करोड़ शुड बी फ्रॉम द ओनर, डिपॉजिटर का नहीं। डिपॉजिटर के पैसे तो हमें रिटर्न करने हैं ना, वो कभी भी आएगा। ये जेबी के पैसे हैं, ये आपके पैसे हैं, ये आपके पेरेंट्स के भी हैं, आपके नेबर के भी हैं। हम लोग तो कभी भी जाएंगे बैंक के पास डिपॉजिट करने, लेकिन बैंक ने ये पैसे लोन्स के रूप में किसी को दे रखे हैं, जिसमें से किंगफिशर का जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। लोन कितने हैं टोटल? 2 लाख करोड़ रुपीस। अब बीइंग अ डिपॉजिटर, आई विल गो टू ATM एंड आई कैन आस्क फॉर माई मनी एनी टाइम। Does the bank have the entire money? No, because 10,000 rupees is bad debt. वो वापस नहीं आएगा, वो पैसा डूब गया। ऐसी सिचुएशन में बेसिल नॉर्म्स ये कहते हैं कि 100 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ रुपीस का 9.5%, यानी कि 950 करोड़ रुपीस बैंक का खुद का होना चाहिए। इट शुड बी बैंक्स ओन मनी, Tier 1 कैपिटल एज वी कॉल इट। कि बैंक के खुद के पैसे कितने, ओनर के कितने पैसे हैं खुद के? 100 करोड़ रुपए।
100 करोड़ कितना हुआ? जस्ट 1% ऑफ द बैड डेट्स। ये हैं टोटल एनपीएज, ये है ओनर्स कैपिटल। होना कितना चाहिए? 850 करोड़ रुपीस। अब इसको मेंटेन करने के लिए सरकार की जो ओनरशिप है ये 55% है, ठीक है। 45% शेयर्स ऑलरेडी लोगों के हैं। ये टोटल 100 करोड़ रुपीस है मान लो, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? या तो अपने शेयर्स को बेच के 850 करोड़ रुपए और जुटाए। अब गवर्नमेंट यदि अपने 5% शेयर्स को बेचती है, गवर्नमेंट का शेयर कितना रह जाएगा? 50%। 50% मतलब गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं रहेगी। अब गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट के पास जो राइट्स हैं एसबीआई को कुछ भी कहने के, बीइंग द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, वो राइट्स गवर्नमेंट खो बैठेगी। समझ में आया? इज दिस क्लियर टू यू? Everyone, this is what we call as recapitalization. Recapitalization का सिंपल मतलब ये है, recapitalization simply means that government is investing the money. Okay, it is the government which is investing the money. Recapitalize. Capital being reinvested. That will be good, but प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट, ये गवर्नमेंट का मैं छोटा सा अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। हमने उस दिन देखा था ना इकोनॉमी की क्लास में, या वैसे भी अब जिन लोगों को नहीं पता, ये गवर्नमेंट का बजट है। अब गवर्नमेंट के बजट में एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी एक्सीडिंग द इनकम। इनकम क्या है? जीएसटी से रेवेन्यू आ नहीं रहा, जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रही है। एक्सपेंडिचर है 24 लाख करोड़ रुपीस, इनकम है 20 लाख करोड़ रुपीस। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अगर 850 करोड़ रुपीस और लाए तो कहां से लाए? मोदी जी कहते हैं खिलौने बेच के लाए, चाय बेच के लाए, या प्यारी प्यारी मीठी मीठी मन की बातें करके लाए, जिनसे चाइनीज प्रोवर्ब ये कहता है टॉक डज नॉट कुक राइस। समझ में आया? अब ये 800 करोड़ रुपए कहाँ से लाओ? अपनी हिस्सेदारी बेचो, यानी कि अपने ही मकान में अपना फ्लोर बेच दो, उस फ्लोर से जो पैसे मिले उससे घर की मरम्मत करा लो, बैंक की मरम्मत करा लो, नहीं तो बैंक कोलैप्स हो जाए, घर कोलैप्स हो जाएगा। समझ में आया? पकौड़े बेच के ऑल्सो यू गाइस हैव adopted my vocabulary, पकौड़ा, चाय, अब खिलौने ऐड कर लेना, ठीक है ना। एक प्रोवर्ब है किसी मूवी में कुछ ऐसा ही, खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे बड़े हो जाते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते करते बूढ़ा आदमी खिलौनों पे आ गया। क्लियर है ये सबको? अब yes, this is the meaning of it. We will understand this in the economy class. Now, while a few air sensors to monitor air pollution, ये बाद में कवर करेंगे, आज नहीं। Okay. National Ambient Air Quality Standards for over 5 years. The enforcement of Sustainable Development Principle and Public Trust Doctrine requires the stern measures to be adopted to give effect to the mandate of international obligations. Public Trust में हम सरकार को रखते हैं, ठीक है। Public Trust Doctrine के अराउंड, Public Trust Doctrine के तहत सरकार sovereign holds the trust of the people to manage the designated resources for the benefit of people at large. ठीक है। The right to clean air stood recognized as a part of right to life.
आर्टिकल 21। तो एनजीटी ने ये सब कहा है, इसको थोड़ा सा खुद पढ़ लेना गाइस। मैं इसको कवर कराऊंगा एक दिन किसी ऐसे अच्छे तरीके से कि ये भूलोगे नहीं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये एडिटोरियल्स वगैरह वी विल सी। तो द सुप्रीम कोर्ट, ये जो रिजर्वेशन वाली जो चीज़ है उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन कोजेंट रीजंस, लॉजिकल रीजंस फॉर अ रिकंसिडरेशन ऑफ द वर्डिक्ट given by in Chenaiya judgment, given by a 5-judge bench, that states that state legislature, which says that the state legislature has no power to create sub classification. ये Chenaiya judgment हमने कवर कर लिया था, राइट? So to create sub classification among the list of scheduled caste notified by the president, a 5-judge bench has affirmed the competence of the states to give preferential treatment to the weakest among the scheduled castes without depriving other castes of any benefit. Now, court has noted that SC list contains many castes and cannot be treated as a homogeneous group. It has recognized the obligation of states to identify for preferential treatment those sections of society within the SC communities to whom reservation benefits had not trickled down. Rajat, you have been in many of my classes. तो मैंने ये बताया था कि ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है। जब कोई इकोनॉमी में हमारे यहाँ ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो चुकी है, दिस इज अ शार। ओके, शार का जो बेनिफिट है, वाटर फ्लोज डाउन, वाटर कम, ड्रॉपलेट्स विल कम डाउन इवेंचुअली, है ना। ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये नीचे आएंगे। बट इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन थ्योरी लगाई गई थी। ये सोचा गया था ये जो इंडस्ट्रियल क्लास है जो इस शावर को मेंटेन कर रही है, ये लेबर के जो राइट्स हैं, लेबर का जो राइटफुल शेयर बनता है, वेजेस बनती हैं, वो वेजेस देगी और ये सारा कुछ सही हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह 1970s में रिफॉर्म करे गए, उनके अंडर जो रूल्स हैं उन्हें अमेंड किया गया इंदिरा गांधी सरकार के टेन्योर के दौरान। नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, वेजेस वगैरह तो सारा कुछ हो गया, नहीं हो पाया, ये उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लोन मेलाज और ये सब लगाने पड़े और 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लेके आनी पड़ी। रिजर्वेशन में भी ये सोचा गया, अब इसका रिजर्वेशन का रेप्लिका बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि एक IAS ऑफिसर यदि सिलेक्ट होगा तो वो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स बाकी लोगों को देगा। ठीक है, वो जागरूक होगा, अवेयर होगा, अपने गांव के, अपनी कम्युनिटी के स्केड्यूल्ड कास्ट लोगों को आगे लेके आएगा। हुआ क्या, वो अपने ही बच्चों को बनाने में लग गया। देयर आर एग्जाम्पल्स इन द रिजर्वेशन पॉलिसी दैट वेयर द चिल्ड्रन हु हैव गॉट सिलेक्टेड इन द IAS, they have severed their ties with the village that they belong to, let alone the family. फैमिली को पहचानते नहीं। क्यों? उनकी फैमिली की लुक्स ऐसी हैं जो IAS कास्ट में, IAS क्लास में उनकी कास्ट के बारे में बता देगी। समझ में आया? इसीलिए एक बड़ा कारण ये भी रहता है कि कभी कभी जब ये बताया जाता है, ये देखा जाता है कि जो SC ST कैंडिडेट जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो उन्हें रिलेटिवली कम नंबर दिए जाते हैं। एक तो ये कि इनका तो हो ही जाएगा सिलेक्शन और ये रिजर्व्ड लिस्ट से दूसरी लिस्ट में माइग्रेट नहीं कर जाएं। दूसरा ये कि जो बहुत अच्छे जो डायरेक्टर्स रहते हैं, जो चेयरपर्सन रहते हैं बोर्ड के, उनको ये लगता है कि ये लोग अपनी फैमिली से, क्योंकि एक जनरली एक प्रिवेलिंग थॉट बन गया है, अपनी फैमिली से वो लोग कुछ ऐसे लोग अपनी फैमिली से ही टाइज तोड़ लेते हैं। क्यों? Because once they become IAS officers, IPS officers, they become a part of a class, elite class. So they don't want to be associated with a caste and they even change their surnames, etc. ये चीज़ की वजह से trickle down theory सोशियोलॉजी में भी फेल हो रही है, right? P. Kumar, you are there in the classes, no? You are there in the current affairs classes. I had explained it on 27th of August, I think. 26th और 27th of August को जो क्लास हुई थी। इसीलिए अब ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड्स यूज़ करे हैं, मैंने उसका इकोनॉमिक वर्जन भी बता दिया। इकोनॉमी में जो एलीट क्लास है वो जब एलीट होगा
तो वो गरीब को राइटफुल वेजेस नहीं देगा, राइट? नेचुरल सी बात है ये। Done? Constitution has been amended in 2018 to introduce Article 342A, under which the President notifies, in consultation with the states, the list of backward classes with a caveat similar to the ones in respect of the scheduled caste, Article 341, and scheduled tribes, Article 342, that Parliament can make inclusions or exclusions in this list, and that once such a change is notified, it shall not be varied by any subsequent notification. तो अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। बेंच हैज डिसअग्रीड विद द फॉर्मुलेशन इन ईवी चिनैया केस। ईवी चिनैया केस में ये कहा गया था कि स्टेट्स हैव नो राइट टू अमेंड द लिस्ट ब्रॉट अबाउट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 341. Okay, that classifying scheduled caste into groups amounts to tinkering with the presidential list, ये कहा गया था कि लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये शायद बात के हिट संकेत दिए हैं कि लिस्ट को सेम रखते हुए प्रायोरिटी डिसाइड करना, जो कास्ट 2 पे है अगर वो ज़्यादा बैकवर्ड है तो उसे 1 पे लेके आना, ठीक है? जो कास्ट 3 पे है अगर वो 5 पे डिजर्व करती है क्योंकि उसका ऑलरेडी रिलेटिवली प्रोग्रेसिव है वो, तो उसे 5 पे लेके आना, ठीक है? Constitution has been amended in 2018 to introduce Article 342A, under which President notifies, in consultation with the states, the list of backward classes with a caveat similar to the ones in respect of scheduled castes, Article 341, and scheduled tribes, Article 342, that the Parliament can make inclusions or exclusions in the list. ठीक है? तो under which the president notifies, in consultation with the states, the list of backward classes with a caveat similar to the ones in respect of scheduled caste, that the parliament can make inclusions or exclusions. It shall not be varied to any subsequent notification. What is the effect of this? Court says that it could mean that just as backward classes list can be divided into backward and more backward, same could be done among scheduled castes too. ओके, रिकॉर्डेड पी कुमार, रिकॉर्डेड क्लासेस आर अवेलेबल। ओके, वैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया है। डिसअग्रीड विद द फॉर्मुलेशन इन ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एज ईवी चेन्नैया केस इज ऑल्सो अ वर्डिक्ट बाय अ बेंच विद द स्ट्रेंथ ऑफ 5। तो जब किसी बेंच में 5 जजेस होते हैं और अगला बेंच 2020 के बेंच में भी अगर 5 जजेस हैं, तो इस जजमेंट को रिवाइज करने के लिए कितने जजेस चाहिए होते हैं? मैंने बताया था 7 जजेस चाहिए होंगे। अगला जो बेंच होना चाहिए वो ज़्यादा जजेस का बेंच होना चाहिए, क्योंकि 5 = 5, तो पहले वाले 5 जज बेंच की जजमेंट को नेगेट करने के लिए अगली जजमेंट 7 जज बेंच देगा तो ही सही होगा। इफ द जजमेंट इज रिकंसिडर्ड, इट वुड प्रोवाइड वेलकम रिलीफ टू द स्टेट्स दैट विश टू फुलफिल। अब स्टेट्स के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि उनको अपनी जिम्मेवारी जो कास्ट की तरफ है वो फुलफिल करनी है, दैट हैव मेड द लीस्ट प्रोग्रेस। कुछ कास्ट जो रिलेटिवली बैकवर्ड रह गई हैं रिजर्वेशन के 70 से ज़्यादा साल के बावजूद भी। In the present case, the affected state was Punjab, which wanted to give preference to Balmikis and Mazhabi Sikhs among the seats reserved for SC candidates. But the measure was struck down by the High Court, citing पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट जो ये स्टेप लेना चाह रही है ईवी चेन्नैया केस के चलते, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी दी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जजमेंट मानी जाती है। समझ में आया? कि बाकी हाई कोर्ट्स जो है उसको रिकॉर्ड मान के चलते हैं। कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के विपरीत या ओपोजिट में जजमेंट नहीं दे सकता। और ऐसा ही हुआ यहाँ पे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। तमिलनाडु हैज ऑल्सो कार्व्ड आउट 3% कंपार्टमेंट फॉर अरुंधतियार्स विद इन 18% SC कोटा। Such affirmative action programs will be protected if the larger bench of 7 judges of the Supreme Court overturns the Chennaiya
रूल। चिनैया फॉर्मुलेशन में क्या है, चिनैया जजमेंट में ये कहा गया कि नहीं, प्रेसिडेंट द्वारा आर्टिकल 341 के अंडर बनाई गई लिस्ट में स्टेट्स को क्रीमी लेयर के हिसाब से एससीज और एसटीज को रिकैटेगराइज करने का या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी डिटरमाइन करने का कि किस कास्ट को कितनी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उसका कोई हक नहीं है, राइट। However, the outcome may not be an unmixed blessing for Dalits at large. Recent jurisprudence का मतलब होता है the way the judgments are evolving and framing a policy is veering towards the view that creamy layer concept should be applied to SC/ST candidates as well. Given the oppression and marginalization that Dalits continue to face, it is a moot question whether this is the appropriate time to begin excluding some of them. Now OBCs में क्या होता है कि overall 27% जो reservation है उसमें से कुछ को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया है, फिर उसमें से कुछ के लिए 5% रिजर्व कर दिया गया है। अभी एससीज और एसटीज के लिए क्या है, 17%, 17.5% रिजर्वेशन है, तो 17.5 में एससी कैटेगरी 1, एससी कैटेगरी 2, क्लास 3, कास्ट 3, कास्ट 4, all of them have got equal chances of getting selected under 17.5%. But this, for example, this SC caste 2 is backward than SC caste 1. So the judgment now is saying that the state governments can reclassify this category and can say that 2% of the seats reserved for SCs out of 17.5% could be reserved only for SC caste 2, scheduled caste 2 only. 5% of the seats could be reserved for scheduled caste 5. Clear? So this is the import of the new judgment. Clear? This is not so good an article. So any doubts guys? Today के आज के लिए इतना ही। कुछ टॉपिक्स जो थे थोड़े इंपॉर्टेंट थे तो उस पर हमने टाइम स्पेंड किया, खासकर इकोनॉमी वाला जो एडिटोरियल टाइप था। उससे आप बैंक की बैलेंस शीट एटसेट्रा बना सकते हो। अभी के लिए जो हमने आज देखी गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है उससे, आई होप कि दिस थिंग वुड हैव बीन क्लियर टू यू। Are we done? So this was all in today's class. See you at 5:30 p.m. for Indian economy, in which we will complete the discussion on monetary policy 3, and we'll begin with fiscal policy of Government of India. All right. So this was all for today. Thank you everyone. Bye bye guys. Shweta, link for what? Yes, P. Kumar, there will be a doubts class on Saturday. There will be a doubts class on Saturday. All right, guys. Last class PPT, which last class? Weekly current affairs PPT. We have already had a word on this. IFTI, that will be provided. Integrated GS group, we are talking about Shubhangi. Please check, it has already been uploaded there. I can see it. Why can't you see it? In the file section, please watch some YouTube video how to use Telegram. Where is the file section of the Telegram? That will help you. You are checking the doubts group maybe. Please check the other group, Integrated GS group. It is there.
The group with 160 members. Guys, please help each other in this. Please help each other. Okay, team will do the needful for some of you. I am getting your messages. They will give the link. Please message me. जो लोग अभी तक IGS ग्रुप में एडिड नहीं हो, तुम लोग पता नहीं कौन से गोले पे रहते हो, @Jatin Verma 0509. This is my personal ID 0509. इस पे पिंग करो विदाउट एनी स्पेस Jatin Verma 0509. Okay. Discussion group is different. The link for discussion group will also be shared soon. Okay. Done. It is there on the website as well, guys. Please थोड़ा सा देखो, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है आपको. Clear? So this was all for now. Okay, those of you who have already pinged me on the Telegram, they will be getting a reply with the link on the Telegram itself. Thank you, everyone.